and welcome to Dear Kids. In today's video, we'll be continuing with the 5th chapter, the fundamental unit of life of class 9th, and the topics we'll be taking in more detail are plasma membrane, cell wall and nucleus. ये कैसे बने होते हैं, इनका structure and functions को आज हम detail में study करेंगे. Let's begin with the positive thought as always, which says that successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. कि abilities में कमी नहीं होती है. What lack? What's the difference between successful and unsuccessful people is the desire to reach their full potential. That means सिर्फ उस इच्छा शक्ति की कमी होती है. Otherwise, anyone can be successful in life if they desire to reach their full potential. Okay, let's begin with the topic. In the previous videos, we have studied that cell. This basic structure of cell, what are the basic prokaryotic, eukaryotic, unicellular, multicellular organisms are there, how they are different, a little bit about that. So in today's video, we'll be discussing in further detail about these three. In the cell, we have seen that we will be discussing in further detail like this. If it's divide a cell into further categories, how we can study them more in a proper way. So we can divide the cell into three. First, cell boundaries, second being cytoplasm, and third being nucleus. Okay, we can divide into these three. In the cell boundaries, we can talk about cell membrane and cell wall, which is present only in the plant cell. Remember, plant cells have cell membrane as well as cell wall. Okay, cytoplasm, which again can be divided into further parts to study it in a better way. हम cytoplasm में study कर सकते हैं cell organelles को, cell organelles, and हम second component study कर सकते हैं non-living components of the cell, that can be the excretory products, secretory products, which can be in the form of vacuoles like fat and oil vacuoles are there. There are resins, latex, nectar which are produced in the plants. So these are all the non-living components of a cell, cytoplasm basically. And we can study in further detail about the nucleus because it's a very prominent structure in the nucleus. Fine. Let's begin with the cell membrane. So we are aware that cell membrane, which is also called as a plasma membrane. हम क्या कहते हैं cell membrane को? हम इसे plasma membrane भी कहते हैं. This is a very thin and it's a delicate, elastic and selectively permeable. Okay, selectively permeable का मतलब क्या है? कि ये selectively मटेरियल्स को अलाउ करती है. कैसे पता है? कुछ मटेरियल्स को अंदर अलाउ करना है और कुछ सेल्स के अंदर मटेरियल को अलाउ नहीं करना है. ओके, कौन सा मटेरियल इन एंड आउट होगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फाइन. एंड इट इज अ लिविंग बाउंड्री ऑफ अ सेल. ये लिविंग बाउंड्री होती है. व्हाई इज देयर एनी नॉन लिविंग बाउंड्री? वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो. Okay, the next important feature of this is the plasma membrane structure we are saying is selectively permeable and it allows the movement of some substances only. So this was not very easy to understand कि ये कौन से materials को allow करेगी, कौन से को नहीं करेगी. This was explained by a scientist जिनको हम दो scientists थे, Singer and Nicholson. इन्होंने एक model दिया plasma membrane का, which was able to explain that how it becomes selectively permeable and how it allows the different functions of a cell. इस model को हम कहते हैं fluid mosaic model. Okay, and I've taken its diagram for you so that you can understand it in a better way. Okay, and this was explained in 1973 by Singer and Nicholson. इसे कहते हैं fluid mosaic model. इससे पहले unit membrane model और बहुत सारे models दिए गए थे जो इसके structure को explain करते थे, but they couldn't explain the many properties of cell. Okay, cell membrane. So this was the one which could explain. What it says, this model says that it is the cell membrane is made up of two things, proteins and lipids. Fine, lipids जिसको हम normal language में fat कहते हैं, but scientifically it is lipids, हम जो science में language use करते हैं. So it was said that it is why it is called so fluid mosaic model because जो proteins और जो lipids है वो arranged है एक mosaic pattern में. मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है, जैसे कि सी के अंदर आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं ना, आइस बिग पीसेस ऑफ आइस ब्रेक एंड द स्मॉल पीसेस फ्लोट इन द वाटर. सिमिलरली इट सेड दैट ये लिपिड के सी के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हो, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इन मोर डिटेल.
this is a diagram you can observe here. You can see that these two layers, ये जो हमारी layer है cell membrane, this is a lipid bilayer. लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की दो लेयर्स से बनी होती है. एंड दीज अदर स्ट्रक्चर विच यू कैन सी, this one structure and this here you can see these are the proteins. जैसा कि हमने कहा कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी है. तो प्रोटीन्स ये है हमारे जो हमारे इस तरह से अरेंज है और सरफेस पे भी अरेंज है कुछ जगह पर, एंड somewhat they are arranged in the layer also. So these two are the lipid bilayer. आप देख सकते हैं ये लेयर एक है हमारी और ये है दूसरी लेयर लिपिड की. You can see these structures which looks like a matchstick. अगर आप matchstick का structure देखिए, you on the top you have some substances and the wooden stand is there, wood is there. So similarly इसका structure भी आपको कुछ ऐसा ही दिखता है. And here you can see there are different structure. There are phospholipid molecule is there. there is a protein structures as there. Now अब जो हम बात करते हैं लिपिड की, लिपिड का मॉलिक्यूल्स इसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज इट्स टॉप, इसका जो हेड पोर्शन आप देख सकते हैं और ये जो टेल पोर्शन कह सकते हैं, हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक, ये होता है वाटर लविंग, इसीलिए ये आउटर सरफेस की तरफ अरेंज होते हैं, आउटर सरफेस की तरफ पॉइंटिंग होते हैं. और ये जो हमारा टेल लाइक पोर्शन है, दिस वन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, ये वाटर हेटिंग है. फोबिक मीन जिसको वाटर से फोबिया हो. So that's why they arrange themselves in this way. So these molecules can move from here to here. They can move from upper layer to lower and lower to upper layer. Flip flop movement, circular movement, इनमें बहुत type का movement possible है. But they will be always found like head will be in the outside or towards the cell, but the tail will be facing it towards each other. Okay, and these proteins which you can see, कुछ proteins आप देख सकते हैं surface पे है और कुछ proteins है जो inside है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है. और ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं यहाँ से, दिस सर्व्स एज अ चैनल फॉर मूवमेंट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस. अब कुछ सब्सटेंसेस यहाँ से एंटर करके यहाँ से पास होते हुए दे कैन मूव इनसाइड द सेल. यहाँ से सेल के आउटसाइड से एंटर करेंगे और दे कैन मूव इनसाइड द सेल इन दिस वे. फाइन, here you can see it is shown here. This is serving as a channel. पोरिन प्रोटीन्स जो कि यहाँ से पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो सके. कुछ सब्सटेंसेस दे गेट अटैच्ड विद दीज स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड देन फिर इसके इनवर्ड मूवमेंट से ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. सो देयर आर सेवरल वेज इन विच दिस मॉलिक्यूल्स मूव एंड दिस इज डेफिनेटली स्पेसिफिक. ऐसा ही मूवमेंट नहीं होता. There is some logic, some purpose that they will be doing different types of movement. So this is the basic structure. This is not actually given in a textbook, but it is required to understand the structure and the properties. Fine. Moving further, let's understand its structure in more detail. जैसा कि हमने कहा, ये बना होता है दो चीज़ों का, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स. फॉस्फोलिपिड्स की हम बात करें, फॉस्फोलिपिड्स जैसा कि आप देख सकते हैं दो वर्ड से बना है, फॉस्फो एंड लिपिड्स. दैट मीन्स कि जब फॉस्फेट ग्रुप लिपिड्स के साथ अरेंज हो जाता है, देन इट फॉर्म्स फॉस्फोलिपिड्स. एंड सेकेंड पार्ट इज द प्रोटीन्स. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? प्रोटीन्स है. फाइन. सो इन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट है वो यही है, फॉस्फोलिपिड्स. ये क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्टिफ नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स कैन मूव. ओके. सेकेंड, we have discussed phospholipid molecules have two ends, hydrophilic that is water loving, which are toward outside the cell in the extracellular side, and that is inside the cell side, that is cytoplasmic side. और जो hydrophobic tail है वो एक दूसरे को फेस करते हुए है. फाइन. जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हमने कहा दो तरह के प्रोटीन्स है. आप देख पा रहे हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनर स्ट्रक्चर में भी हैं. ओके, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. जैसा कि हमने पीछे वाला देखा था, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर एंड दीज प्रोटीन्स, ये कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. और ये जो आप देख रहे हैं जो कि सरफेस पर ही है, ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, क्योंकि ये एक्सटीरियर में है, बाहर की तरफ है. और इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से हैं? जो अंदर है स्ट्रक्चर के. फाइन. सो इंटीग्रल प्रोटीन्स विच आर 70%
in this among the proteins, integral proteins will be 70%, 30% will be peripheral proteins या फिर जो periphery पर है. ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो 30% है और ये दे आर एबल टू मूव फ्रीली, दे आर एबल टू मूव फ्रीली. सो क्या करते हैं, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये क्या करते हैं, ये टनल बना लेते हैं सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए टनल बना लेते हैं. सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म लाइक पोरिन प्रोटीन्स. ओके, सो दीज आर इन्वॉल्व इन दैट फंक्शन. दैट्स हाउ इट वॉज एक्सप्लेन्ड कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड में मटेरियल का मूवमेंट कैसे कंट्रोल होता है. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स इट इज कंट्रोल्ड. Moving further, when we talk about movement of substances through cell membrane, यहाँ पर कुछ processes involved है जैसे कि diffusion and osmosis. अब diffusion and osmosis में क्या difference है, let's understand it. और या फिर ये होते क्या है. When we talk about plasma membrane, हम कह रहे हैं कि ये selectively permeable membrane है because ये कुछ certain substances का movement allowed करती है and others को रोकती है. Fine. तो ये कैसे करती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी थ्रू फर्स्ट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है, दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर इन हाई नंबर टू द एरिया वेयर दे आर इन लेस इन नंबर. जहाँ पर ज्यादा होगा वहीं से कम की तरफ तो जा सकता है, जहाँ कम है वहां से ज्यादा की तरफ नहीं आता है. जिसके पास जैसा पैसा होता है वही डोनेट कर सकता है. करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हाई एरिया से, मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले. नॉर्मली रिमेंबर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. तो ध्यान रखिए, ऑस्मोसिस में हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की, जहां पर वो अपने वेयर दे आर इन मोर नंबर टू द वेयर दे आर लेस इन नंबर, दे आर मूविंग थ्रू दैट वे. ओके, और यहाँ पर इसमें you would have seen, we always see this osmosis happening inside our body in most of the cells, in fact all the cells, and in lot of other processes also. जैसे हम किशमिश भिगोते हैं, तो किशमिश जब हम भिगोते हैं पानी में तो रात को डिप करके रखते हैं, अर्ली मॉर्निंग you will see that they will swelled up because water has moved from the bowl into the kishmish or the raisins. क्यों? Because the raisins were dried up and when they were dried up to store or preserve, तो उनमें water content कम हो गया है. तो water content जब बाउल में ज़्यादा है तो वहाँ से वो मूव करके raisins के अंदर मूव कर जाता है. Fine. And the next one which we need to understand is diffusion. अब diffusion क्या होता है? This is the movement of ions or molecules. ये क्या है? Movement of ions or molecules again from a high concentration to the region of low concentration. जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन होता है. लंग्स से हमारी बॉडी में ब्लड में कैसे ऑक्सीजन पहुंच पाता है? That is because of diffusion. Because blood वेसल्स के अंदर ब्लड का ऑक्सीजन का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो कम होता है और लंग्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो वहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स में मूव कर जाता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है क्योंकि वो हमारी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही है. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के सेल से होते हुए एल्वोलाई में एंटर कर जाती है. Fine. So this is also the movement of substances through cells because blood vessel की cells से होकर वो पहुंचेगी alveoli की cells के अंदर and then वहाँ से वो it will be thrown outside. Fine. So diffusion is this. Diffusion you can see outside also, like when you enter the car, हम car freshener on करते हैं. Sometimes we spray the room freshener. So you would have seen the molecules of that particular room freshener or fragrance पूरे रूम में spread हो जाती है या पूरे घर में spread हो जाती है. That is also because of diffusion. Fine. Now moving further, अगर हम बात करें सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड में जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा सोल्यूशन अवेलेबल है, उसकी बात करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं उन सॉल्यूशंस को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में. कि सेल के बाहर कैसा सोल्यूशन अवेलेबल है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या कौन सा सोल्यूशन अवेलेबल है जो कंट्रोल करेगा कि वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा या बाहर होगा या नहीं होगा. फाइन. सो दैट डिपेंड ऑन दीज टू सॉल्यूशंस कि बाहर कौन सा सोल्यूशन है. फाइन. नाउ इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन,
अगर जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि ये है सेल के बाहर है, इसके अंदर इफ द दिस वन सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस है, सॉल्यूट है, उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब सेल के बाहर जो पानी है या सोल्यूशन है, इट्स नॉट एग्जैक्टली वाटर, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, सो उसमें अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, वहां से सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने से पानी का मूवमेंट सेल के अंदर होगा. Fine, and because of this the net flow of water will be into the cell and cell will swell up. जैसा कि रेजिन्स के केस में हो रहा है. रेजिन्स के अंदर सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है लेकिन पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो सेल बाहर से रेजिन्स के अंदर पानी मूव करता है. सो दिस इज हाइपोटोनिक. ध्यान रखिएगा, ये हम सेल के बाहर के मीडियम की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट इज कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है हमारा, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर if the solute concentration inside the cell and the outside the cell is both same, the net movement जो water का होगा that will be zero. Okay, because inside and outside दोनों water molecules का concentration same है, so net movement will be zero. Next आता है hypertonic solution. इसमें यह है कि अगर सेल के अंदर जितने सॉल्यूट्स हैं उससे ज्यादा सेल के बाहर है तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट सेल से बाहर होगा, तो ऐसे केस में सेल श्रिंक हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सॉल्यूट्स, ये है हमारे सॉल्यूट्स, अगर सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है और सेल में कम है तो क्या होगा, सेल से वाटर यहाँ पर बाहर मूव आउट करेगा और सेल श्रिंक हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक and hypertonic. Okay, now let's understand the structure of plant cell wall. कि plant की जो cell wall होती है उसका structure क्या होता है. Okay, when we talk about cell wall, we should know that cell wall contains most of its cells dead. That means it contains, its outermost wall is dead. Okay, it contains most of the dead cells. Fine. And remember that bacteria also have cell wall. Its composition is little bit different. That means the plant cell wall's composition and bacterial cell wall's composition is little bit different. But yes, bacteria also contains cell wall. Plant cell wall, when we talk about, mostly is composed of cellulose. Cellulose से बनी होती है plant की cell wall. If we talk next further detail, we have to understand that plants cell wall, it permits it to have means it allows it to withstand the little bit or the very dilute hypertonic medium. That means अगर किसी सेल के बाहर का मीडियम में solutes concentration कम है, that means water can enter into the cell. उस केस में सेल को बर्स्ट होने से या फूटने से बचाती है प्लांट के सेल वॉल, because it is rigid. बिकॉज ये बनी है डेड सेल्स की, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और रिजिडनेस ज़्यादा होने से इट अलाउज इट टू हैव अ लिटिल बिट स्ट्रेंथ एंड इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग. फाइन, you can understand here, you can see the plant cells, these are the cell boundaries. You can observe here hexagonal cells like structure, and these are on the boundaries there will be cell membrane, and outside cell membrane there will be a cell wall in plant cells. Okay, moving further, now the next very important part of the cell, that is nucleus. And what is there in the nucleus? Let's understand more about it. When we talk about plant cells, you can look here, the most prominent structure which you can see in the cell is the nucleus. Now what is there in the nucleus? When we talk about nucleus, we have to understand that nucleus is a double membrane structure. When we talk about nucleus, हम सबसे पहले बात करते हैं किसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. किसमें देखो ऑब्जर्व किया था इन्होंने, ऑर्चिड के रूट सेल्स के अंदर, ऑर्चिड में रूट के सेल्स के अंदर इसने डिस्कवर किया था कि इस तरह का एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है. रिमेंबर, बट ध्यान रखिए, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल्स में मोस्टली सेंट्रल पार्ट में होता है इन द सेंटर, एंड द प्लांट सेल्स में ये पैराफ्री में होता है. दैट मीन एनिमल्स में सेंटर में होता है, प्लांट्स में पैराफ्री में होता है. Now, if we have to keep in mind that nucleus is a double membrane bound protoplasmic body. That means इसका जो membrane हम यहाँ पर देख रहे हैं ये double membrane है. यहाँ पर it forms a double membrane बनाता है.
एंड न्यूक्लियस इज सेड टू बी अ कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल्स। जैसे डायरेक्टर हर चीज को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, वैसे ही हमारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जो हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या डायरेक्ट करता है कि सेल में क्या चीज बननी है, कौन सा एक्टिविटी होना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ओके, एंड इनसाइड न्यूक्लियस there is some genetic material which controls that, we'll be discussing in detail. Now next thing we need to understand, हमने न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंस कैसे समझा कि अगर हम किसी सेल्स में से न्यूक्लियस को निकाल दें और ऑब्जर्व करें कि does the cell survive, so cells cannot survive without nucleus for long time. Okay, next thing we need to understand is कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है except few mature cells, like we should know that are RBCs. हम बोलते हैं हमारे ब्लड सेल्स कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, they cannot survive for long. The reason being कि हमारे RBCs lose nucleus after some time because उसमें इतना constant movement होता है substances का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में इतना इन्वॉल्व होता है that its nucleus disintegrates. न्यूक्लियस उसमें नहीं रहता है कुछ टाइम के लिए बाद में, इसी वजह से आरबीसी ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं. एंड सेकेंड, इन प्लांट सीव ट्यूब सेल्स इन द प्लांट्स ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पर भी क्या है जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग टिश्यू. सो हियर ऑल्सो द न्यूक्लियस डजंट रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. When we talk about location, we discussed earlier कि animal cells के अंदर ये होता है सेंटर में और plant cells में होता है ये towards the periphery. Why it is towards the periphery? Because you're aware in plant cells this vacuole takes a central position. Vacuole central position ले लेता है, इसीलिए वो nucleus को towards the periphery push कर देता है. Right? Now let's understand that what is there in the nucleus which controls all the activities. सेल की हर एक एक्टिविटी को न्यूक्लियस में क्या चीज़ है जो कंट्रोल करती है. सो दैट इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन लिटिल बिट डिटेल कि न्यूक्लियस में ऐसा और क्या है अदर देन द जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है बाहर का, एज वी डिस्कस इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है. इट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स. ओके, न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं ताकि सब्सटेंसेस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस हो सके. फाइन. द नेक्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप. ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसी में सारे केमिकल्स मिलते हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हो, न्यूक्लियोसाइड्स हो, एंजाइम्स हो, डीएनए हो, आरएनए हो. because basically in the nucleus there is a genetic material DNA and DNA से बनता है RNA. RNA is there for the formation of different substances. जैसे प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में DNA से RNA बनता है, RNA से फिर बनते हैं प्रोटीन. तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें होती है DNA, RNA, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स जिससे DNA और RNA बनते हैं. ओके, तो ये सब मिलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर. फाइन. लेट्स मूव फर्दर. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डीएनए हमारा ये सेल में ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल. से हमारे डीएनए को हम क्या बोलते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल ये होता है डीएनए. मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर डीएनए होता है. कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैन बी आरएनए ऑल्सो, अदरवाइज मोस्टली इट इज द डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, और सेकेंड जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्या है बेसिकली व्हेन डीएनए इज कवर्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए ये मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन. ओके, एंड क्रोमेटिन मटेरियल में ही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है. और ये जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिविजन. जब कोई सेल डिवाइड होने की सिचुएशन में होता है तो क्रोमोसोम्स का शेप ले लेते हैं. जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ you can see in this diagram here, you can see here this is our body cell. In the cell you can see here that यहाँ पर हमारे पास है ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हमारे हैं क्रोमोसोम्स. बिकॉज इमेजिन दैट इफ दिस सेल इज अबाउट टू गो अंडरगो द सेल डिविजन, इसी वजह से ये सेल में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया है. ये क्रोमोसोम के अंदर यू कैन सी इट्स हाईली कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स है ये. और you can see if you open it you can see here DNA is double helix, और double helix को भी if you open it you will find the nucleotides and nucleosides arranged here. Okay, so that's how the genetic material is there in the nucleus. Moving further,
क्रोमोसोम को अगर हम फर्दर स्टडी करें, हम बोलेंगे क्रोमोसोम इज ए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जैसा हम यहाँ देख ही रहे हैं, ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन मटेरियल का। फाइन। और इसको फर्दर स्टडी किया था एक साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवेरी। They started and they were the ones who told कि this is basically chromosomes which are carrying the information from one generation to next generation, and they were the only who told कि gametes के through gametes में हमारा chromosomes का transfer होता है, वहीं से हमारे को हर एक parent से हमें genetic material का transfer होता है। ओके, एंड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक गेमीट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं जीनोम, जो कि हैप्लॉइड होता है। दैट मीन्स जिसको हम बोलते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स का डबल सेट होता है, वो नहीं होकर सिंगल सेट पहुंचता है हमारे हर एक गेमीट के अंदर। दैट्स हाउ वी रिसीव वन सेट फ्रॉम मदर, वन सेट फ्रॉम फादर, एंड दैट्स हाउ वी हैव द टू सेट्स। ओके, एंड that's how we look. Some of our features are more like mother and some of our features are like father because of this information which we receive from our parents through chromosomes, okay, which is a highly condensed form of our chromatin material, that is basically the DNA. Fine. Now moving further, लास्ट जो होता है न्यूक्लियोलस। अगर हम न्यूक्लियस को भी अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल पार्ट है, एक एरिया है जो कि ज़्यादा डेंसली स्टेन ज़्यादा डेंस स्टेन एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेन इज देयर टू गिव द कलर टू द ऑर्गेनलीज, ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें अंडर माइक्रोस्कोप। जो न्यूक्लियोलस होता है इट इज़ अ more densely stained area. अब इसमें क्या होता है? It is not covered by any membrane. Okay, it is mainly involved with the ribosome formation. And आपको पता होगा ribosomes are associated with the protein formation. Rough endoplasmic reticulum where the ribosomes are attached, they are associated with the protein formation. और protein formation के होने से पहले ribosomes के formation से ये nucleolus area involved है. And that's why it is called ribosome factory of the cell. Okay, so this was about the nucleus. Nucleus has nuclear membrane which have pores inside it through which substances can move in and out of cell. Then we have a chromatin material. Chromatin material जो कि हमारा DNA होता है mostly. And कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन जिसमें जैसे वायरसेस है ऑर्गेनिजम्स में RNA can also be the genetic material. X chromosomes कब लेता है क्रोमेटिन हमारा? कब क्रोमोसोम की फॉर्म लेता है? जब सेल डिवीजन की स्टेज में होता है। सेल जब डिवाइड होने वाला होता है, हमारा डीएनए एक क्रोमोसोम्स की फॉर्म ले लेता है, जो कि हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं। एंड द न्यूक्लियोलस दैट इज अ मोर डेंसली स्टेन्ड एरिया इन द न्यूक्लियस, उसको हम राइबोसोम्स फैक्ट्री बोलते हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व विद इट्स फॉर्मेशन। फाइन, दिस इज अबाउट द सेल membrane, cell wall and nucleus. In the next video, we'll be discussing the cell organelles in detail about the different functions and structures of those organelles. Let it be mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, and all those. Thank you for watching today. And if you like this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you. Take care.